اب بات کریں گے موسم کی اور آپ کو بتائیں گے کہ مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ جناب، ستلج اور راوی میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا ہے، جبکہ انتظامیہ بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں تیزی۔ خیرپور سادات میں گبر ارائی کے مقام پر دریائے سندھ میں 4,25,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقوں میں تیار فصلیں زیر آب آ گئیں۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں بھی پہنچ گئیں، جبکہ محکمہ انہار کا عملہ حفاظتی سپر بندوں کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ دریائے سندھ نے اپنا رخ گبر ارائی کی طرف موڑ لیا۔ نشیبی علاقوں کے مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ اٹردو میں بھی دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ چشمہ بیراج سے آنے والا سیلابی ریلا تونسا بیراج سے گزر رہا ہے۔ آبی سطح میں مسلسل اضافہ سے ہیڈ تونسا بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جس کے باعث مظفر گڑھ، ٹی پی لنک اور کھچی کینال کو پانی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ تونسا بیراج پر پانی کی آمد 4,29,200 کیوسک اور اخراج 4,23,200 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر دریائے چناب میں ہیڈ پنجت کے مقام پر پانی کی آمد 31,000 اور اخراج 17,000 کیوسک ہے۔ مظفر گڑھ انتظامیہ کے مطابق فی الحال صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ضلع انتظامیہ نے 5 مانسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن ان تمام کیمپس کی نگرانی کرے گی۔ دریائے ستلج میں بھی پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ برے والا کے نواحی علاقہ موزہ گاہی شاہ کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ بستی کھوکھرا، بستی میاں والی، راجو شاہ اور بڈن شاہ میں سیلابی پانی داخل۔ سیلاب میں گھرے علاقہ مکینوں کا نقل مکانی سے انکار۔ مختلف آبادیوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ تل، کپاس اور مکئی کی فصلیں بھی زیر آب آ گئیں، جبکہ ضلع انتظامیہ علاقے میں ابھی تک فلڈ ریلیف کیمپ قائم نہیں کر سکی۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 13,624 اور اخراج 12,142 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ میلسی سائفن پر اخراج 10,000 کیوسک ہے۔ بہاولپور میں ایمپریس برج کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو کر 1.8 فٹ تک پہنچ گئی۔ ایمپریس برج پر 2023 میں پانی کی سطح 2 فٹ سے زیادہ بلند ہوئی تھی۔ کہروڑ پکا انتظامیہ بھی دریائے ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر متحرک ہو گئی۔ مہارہا پتن، بگھا مل، پتن شاہ، ابو طاہر پتن اور شاہ پور پھلا پتن پر کیمپ قائم۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا ڈاکٹر لبنہ نذیر نے دریائی بیٹ کے علاقوں کا دورہ کیا اور مہارا پتن کا وزٹ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ، ریسکیو، لائف سٹاک، محکمہ صحت سمیت تمام محکمے الرٹ رہیں۔ مانسون بارشوں سے دریائے راوی میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تلمبا میں سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا اور تل، کپاس، جوار، مونگی کی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے تاحال فلڈ ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا جا سکا۔ محکمہ انہار کے مطابق دریا میں سیلابی پانی ہے، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی پہلے بھی داخل ہوتا ہے۔ ہیڈ سدانی سے 25,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ ناظرین، ٹرانسپورٹرز ایل پی جی کے خلاف کریک ڈاؤن پر میدان میں آگئے۔ صدر ال پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن جنوبی پنجاب رانا اصغر کہتے ہیں، حکومت نے پہلے ماحول دوستی کے نام پر ڈیزل انجن کو ختم کیا، اب ایل پی جی ختم کر کے ٹرانسپورٹ کو ڈیزل پر لانے کی بات کی جا رہی ہے، تو ماحول دوستی کا نعرہ کہاں رہے گا؟ حکومت ایل پی جی کا استعمال قانونی قرار دینے کے لیے اقدامات کرے۔ ٹرانسپورٹرز ایل پی جی کے خلاف کریک ڈاؤن پر میدان میں آ گئے۔ صدر آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن جنوبی پنجاب رانا اصغر کا کہنا تھا کہ حکومت نے ماحولیاتی آلودگی کے نام پر ماضی میں ڈیزل انجن ختم کروا کر ٹرانسپورٹ سی این جی اور بعد ازاں ایل پی جی پر منتقل کروائی۔ مالکان کو سبسڈی دے کر انجن کنورشن کروائے گئے، تاہم پالیسی میں بار بار تبدیلی سے ٹرانسپورٹرز شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومت پاکستان نے ہمیں دوست ماحول آلودگی کے نام پر ہم سے ڈیزل انجن جو ہمارے سے ختم کروائیں اور ہمیں سبسڈی دے کے کنورشن کیا ہے انہوں نے سی این جی پہ۔ کچھ عرصے بعد سی این جی ختم ہو گئی، چاہیے یہ تھا کہ ان کو اس کا الٹرنیٹ حل دینا، یا تو ہمیں ایل این جی بھی لے کے آتے یا ایل پی جی بھی لے کے آتے۔ اگر ایل پی جی بھی حکومت ہمیں لے کے آئے تو ہم آنے کو تیار ہیں، ہم ایل پی جی چلا رہے ہیں، مگر اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اوگرا سے ہمارے سلنڈر پاس کروائیں، ہماری جو وائرنگ ہے اس کو اوگرا سے فٹنس اس کی کروا کے دیں، فٹنس سرٹیفکیٹ ہمیں جاری کیا جاتا ہے۔ رانا اصغر نے کہا کہ حکومت ٹرانسپورٹ کو دوبارہ ڈیزل پر منتقلی کا ارادہ رکھتی ہے تو مالکان کو انجن فراہم کیے جائے اور سبسڈی دی جائے۔ موجودہ حالات میں لاکھوں کا انجن خریدنا عام محنت کش کے بس کی بات نہیں۔ حکمران ٹرانسپورٹ سیکٹر کی تباہی کا نوٹس لیں تاکہ ہزاروں گاڑیوں کے ذریعے چلنے والا روزگار دوبارہ بحال ہو سکے۔ تو کہ ہماری گاڑیاں روڈ پہ چلتی ہیں، اب ڈیزل انجن تو ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں دوبارہ ڈیزل پہ لے کے آئیں، پھر ماحول دوست آلودگی جو ہمارا اس ٹائم ویژن ہے سب سے بڑا وزیر اعلیٰ پنجاب کو، تو ختم ہو جائے گا۔ میری حکومت وقت سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گزارش ہے، خدا را آپ ایک میٹنگ بلائیں، اس میں ٹرانسپورٹروں کو بلائیں،
वज़ीर ट्रांसपोर्ट को बुलाएं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बुलाएं, वो हमें बैठ के हमसे मीटिंग करें, हमें बताएं कि हमने करना क्या है। राना असगर का मजीद कहना था कि हुकूमत एलपीजी गाड़ियों के लिए ओगरा से सिलेंडर और वायरिंग की मंजूरी दिलवाए, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे और परमिट फराहम किए जाए ताकि गाड़ियां दोबारा सड़कों पर आ सकें। बसूरत दीगर हजारों अफराद का रोजगार बंद हो जाएगा। इंसानी मसाइल के साथ साथ हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए के रेवेन्यू से भी महरूम होना पड़ेगा। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। पीएचए में नाकिस कारकर्दगी और माली बेज़ाब्तियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रेवेन्यू रिकवरी में शदीद कमी और माली निगरानी में नाकामी पर डेप्यूटी डायरेक्टर मार्केटिंग मोहम्मद उसामा को मुअत्तल कर दिया गया। पीएचए बोर्ड की मंजूरी से डायरेक्टर जनरल ने कार्रवाई की। मोहम्मद उसामा को फौरी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस रिपोर्ट करने की हिदायत। मुअत्तली के दौरान तनख्वाहदार मराद कायद के मुताबिक दी जाएंगी। नाजरीन, सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। सोना आम आवाम की पहुंच से कोसों दूर हो गया। सोना आए रोज महंगा होने से छोटे सुनारों का कारोबार तबाह। ताजरों ने हुकूमत से सोने की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी। मुल्तान में 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत 1500 रुपए बढ़ गई। सराफा बाजार में 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,63,000 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 3,32,750 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। उधर रहीम यार खान में सोना 1500 रुपए फी तोला महंगा हो गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 3,62,500 रुपए हो गई। साबिक मेंबर एग्जीक्यूटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद नदीम का कहना है कि आलमी मार्केट में जब सोने की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में दोगुना बढ़ जाती है। हुकूमत सोने की कीमत को कंट्रोल करने का निजाम बनाए। सोना आए रोज महंगा होने से छोटे सुनारों का कारोबार तबाह हो गया है और सोने की खरीदो फरोख्त में वाज़ेह कमी हुई है। ये जो हमारा गोल्ड का रेट है इंटरनेशनल मार्केट के साथ ये होता है, लेकिन पीछे अगर 4 से 5,000 तोले का फर्क आता है तो यहाँ लोकल मार्केट में 8 से 10,000 रुपये तोले का रेट का डिफरेंस आ जाता है, जिससे गाहक में भी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। दूसरी जानिब डीजी खान के सराफा बाजार में भी सोने की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई। सोना 1,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। सराफा बाजार में 24 कैरात सोना 3,56,500 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। 22 कैरात सोना 3,32,750 रुपए फी तोला हो गया। 21 कैरात की फी तोला कीमत 3,17,600 रुपए हो गई, जबकि 18 कैरात सोना 2,72,250 रुपए फी तोला फरोख्त किया जाने लगा। रहीम यार खान जिला इंतजामिया का चीनी की जखीरा अंदोजी और गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। एडीसी इरफान अंदर के प्राइस मजिस्ट्रेट के हमरा खुद मार्केटों पर छापे। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों को 1,42,000 जुर्माना आयद कर दिए। रहीम यार खान में वजीर आला की हिदायत पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज के हुक्म पर जिले इंतजामिया के मार्केटों पर छापे। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों पर 1,42,000 के जुर्माने आयद कर दिए। एडीसी जनरल इरफान अनवर और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समीउल्लाह चौधरी के खुद मार्केटों के दौरे दुकानदारों को नाजायज मुनाफाखोरी बंद करने की वार्निंग दे दी। एडीसी जनरल इरफान अनवर का कहना था कि गिरा फरोशी पर भारी जुर्माने, दुकानें सील और मुकदमात का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि अगर कहीं चीनी महंगी फरोख्त हो रही हो तो फौरी इत्तला दें ताकि मौका पर कार्रवाई की जा सके। इंतजामिया ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फौरी तौर पर चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। लोधरा में चक 90M के रिहायशी की कर्ज अदायगी से बचने की साजिश। 15 पर मुखालिफ के खिलाफ 40,000 डकैती की झूठी कॉल कर दी। मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, लोधरा पुलिस जहां इंसदाद जराइम के लिए दिन रात काम कर रही है, वहीं उन लोगों से भी परेशान है जो लोग पुलिस की तवानाई, पुलिस का वक्त ज़ाया करने के लिए फेक कॉल्स करते हैं, पुराने झगड़ों को निपटाने के लिए उन्हें कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं। आज लोधरा थाना सदर के इलाके में एक ऐसा वक़ुआ हुआ कि एक शख्स ने जाली डकैती की कॉल करने की कोशिश करके मुखालिफिन को फंसाने की कोशिश की, जिस पर डीएसपी सदर सर्कल लोधरा चौधरी आबिद हुसैन भुल्ला मौके पर गए। फिर क्या हुआ उन्हीं से जानते हैं। सर, आज जो वाकया हुआ था ये जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इनका आपस में शाहिद और दूसरी पार्टी का लेन देन का मामला था। ये दूध का बिजनेस करते हैं और इसने कॉल की कि मेरे से बाइक छीन ली, मेरे से 40,000 छीन लिए। तो डेफिनेट ये हमारे लिए एक एमरजेंसी कॉल होती है। उस पर मैं खुद मौका पे गया, एसएचओ मौका पे आया, बाकी भी हमारी जो मोबाइलें थी उनको हमने किया। ये तो एमरजेंसी रिसोर्सेज का ये मिसयूज होता है, वेस्ट होता है। तो जब मौका पे पहुंचे तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, उनका कोई लेन देन का मामला है कोई, बल्कि इसने उनके पैसे देने, इसने उनको
फंसाने के लिए ये कॉल की, तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दे रहे हैं। और 25D की मेरे आपके चैनल के विसातत से मैं तमाम अपने लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह की फेक कॉल से अवॉइड करें, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों को इसकी एजुकेट करें कि फेक कॉल ना सिर्फ उनके लिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का बायस बनेगी, बल्कि हमारे भी वो जो इमरजेंसी रिसोर्सेज उसका वेस्ट होता है, और जो रियल हेल्प की लोग वेट कर रहे होते हैं उनका भी नुकसान होता है। जी बिल्कुल, आपने जाना कि चौधरी आबिद हुसैन भुल्ला का कहना है कि लोग जायज काम के लिए, कानूनी काम के लिए बेशक पुलिस को कॉल करें, पुलिस इनकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है, लेकिन किसी को फंसाने के लिए, जाती मुखासमत को मुकदमात की सूरत सामने लाने की PIA पर पाबंदी का खात्मा बड़ा ब्रेक थ्रू है। विफाकी वजीर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी कश्मीर राना कासिम नून की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में पाक फजाइया की महारत काबिल सताइश है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। यौम तशक्कुर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सिपह सलार आजम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, अपनी बहादुर अफवाज को और शाहीनों को, जिन्होंने भारत और मोदी सरकार के को धूल चटा दी और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अफवाज का, एयरफोर्स का, नेवी का और बिलखसूस जो ईस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसकी सुपरमेसी का वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया अश करके उठी है। और आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह अज़ीज कौमी सलामती के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हमारी सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है। और जिस तरह उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, इससे 10 मई के बाद कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इंटरनेशनलाइज हो गया है। और रिसेंटली जो मुल्तान के रेक्स थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जारी। ड्रामे में मारूफ अदाकारा सिमी खान की परफॉर्मेंस। मारूफ अदाकारा का कहना है कि अज़मा बुखारी थिएटर को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वसीम शहजाद इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेक्स थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जो है वो जारी है। ड्रामा में शहर लाहौर की मारूफ अदाकारा सिमी खान जो है वो भी परफॉर्म कर रही हैं, मेरे साथ ही मौजूद हैं। अब मैडम, सबसे पहले तो आपको मुल्तान में वेलकम कहते हैं, और ये बताइए कि मुल्तान में रिस्पॉन्स कैसा कमा रही है? मैं मुल्तान आई हूँ कम से कम 7 इयर्स के बाद। जब मैं स्टारलाइट में आई तो तब तो काफ़ी अच्छा माहौल था, और मैंने मैडम खुशबू, इफ्तिखार ठाकुर, मैडम अनीला, उनके साथ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया। लेकिन अब काफ़ी देर बाद आई हूँ, मुल्तान के बहुत ही पब्लिक की तरफ से हालात ख़राब है, जो सच है, ठीक है। और इससे ये कि जो ये पाबंदियाँ लगी हैं जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। पब्लिक को चाहिए इंटरटेनमेंट, लेकिन जैसे ये देना चाह रहे हैं, ये बहुत पहले देते अच्छी बात थी। एकदम से सारी सख्ती आनी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। मैडम, ये भी बताइए कि यकीनन अगर हम एक थिएटर के आर्टिस्ट को देखें या उस आर्टिस्ट को देखें जो टीवी फिल्म या फिर हमें आर्ट्स काउंसिल के ड्रामे में नज़र आता है, तो दोनों आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट में लेवल में फ़र्क होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो ये किरदार अदा कर रही है, इससे आप लोगों की रिस्पेक्ट शायद बढ़ जाए? नहीं, ये आपने जिस जगह पे लड़की बैठ गई है, यानी कि इस लाइन में, ठीक है, उसको कभी भी अच्छा नहीं कह सकते। उनको नहीं पता कि लड़की कितनी मेहनत करती है, कितनी भाग दौड़ है उसकी, ठीक है, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ सकते। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज ड्रामा देखें, हमारे प्रोड्यूसर अच्छे से अच्छा ड्रामा बनाएं, क्योंकि जब फैमिलीज आएंगी तो शायद उनके पीछे थोड़ी बहुत इज्जत हमें भी मिल जाए। मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ, मैडम उज़मा बुखारी, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और प्लीज़ सिर्फ हमारी तरफ नज़र ना रखें, काइंडली प्लीज़। जो टिकटॉक पे हो रहा है, जो वर्गैलिटी चल रही है, आप ज़रा उसके ऊपर भी काइंडली तवज्जो दें, क्योंकि वर्गैलिटी सिर्फ हमारे में नहीं है। मैं मानती हूँ कि कुछ एक्टर आई हैं,
उन्होंने इतनी ज़्यादा वर्गैलिटी कर दी, इतनी ज़्यादा कर दी कि कंट्रोल करना मुश्किल थी। ये मैडम ना आती तो अब तक भी वही चलता जो चल रहा था। लड़कियों ने बहुत ज़्यादा गलत हरकत करके बड़ी वाली लड़की को भी नीचा दिखा दिया है। लेकिन चले, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहती। तो अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान में से बुरी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे CCD आई हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको सज़ा दें जिसकी सज़ा बनती है, नाजायज़ उसको सज़ा ना दें जिसकी सज़ा नहीं बनती। मारूफ अदाकारा सिमी खान मेरे साथ मौजूद थी, जिनके इस हवाले से ये कहना है कि थिएटर को बेहतर बनाने का जो मिशन है उसमें गवर्नमेंट के साथ फनकार भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर उस वक्त जब थिएटर ख़राब हो रहा था ये काम उसी वक्त ही संभाल लिया जाता तो ये। वसीम शहजाद, अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान पुलिस की जानिब से 15 रोजा फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा ने इंटर्नशिप में भरपूर शिरकत की। ASP बरीरा कहती हैं, प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल को पुलिस के मुख्तलिफ शोबों बारे आगाही फ्राहम करना है। पुलिस लाइन में 15 रोजा फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी। तलबा को पुलिस के मुख्तलिफ शोबों, ड्यूटी स्ट्रक्चर और अवाम खिदमत के निजाम से रोशनास कराया जा रहा है। ASP बरीरा का कहना है कि उनका मकसद नौजवान नस्ल को न सिर्फ पुलिस के काम से आगाही देना है बल्कि इन्हें ये बावर कराना है कि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए है, न कि किसी खौफ की अलामत। मकसद ये होता है कि पुलिस के बारे में कोई भी जो सवाल होते हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान के होते हैं, क्योंकि हम खुद पुलिस में हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं और हमें लगता है कि ऑर्डिनरी सिटीज़न को भी यही उतनी क्लियर होंगी, विच इज़ नॉट इंटायरली ट्रू। तो जब वो आते हैं वो काफ़ी सवाल हमसे पूछते हैं, जैसे आज भी सेशन काफ़ी हमारा प्रोडक्टिव रहा, तो वो एक हमारा होता है एजेंडा कि जो सवाल हैं हमारे सिटीजन्स के वो भी हम कवर कर लें। और दूसरा एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पुलिस एंड द पब्लिक एंड द सिटीजन्स, वो एक हम कवर करें। प्रोग्राम के दौरान तलबा को पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, फ्रंट डेस्क, खिदमत मराकज और तहफ़्फ़ुज़ मराकज का विजिट कराया जा रहा है ताकि वो निज़ाम को करीब से समझ कर सीखें। तलबा का कहना है कि हमने सीखा कि पुलिस सिर्फ जराइम कंट्रोल नहीं करती बल्कि अवाम की खिदमत में भी पेश है। हमने काफ़ी कुछ सीखा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी गलतफहमियाँ होती हैं पुलिस के बारे में कि पुलिस हमारे साथ ऐसे करती है, ऐसे करती, जातियाँ करती है। लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए तो हमें तमाम चीज़ों का पता चला है कि पुलिस किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या हमारे राइट्स है, क्या पुलिस के राइट्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें आगाह कर दिया गया है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन्हीं हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। मुल्तान पुलिस का कहना है कि ऐसे तरबीती प्रोग्राम्स न सिर्फ नौजवानों की सोच बदलते हैं बल्कि शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद को भी फरोग देते हैं। कैमरामैन इरफान के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सीवरेज मंसूबों की अपग्रेडेशन का काम जारी। नवाबपुर रोड से चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल्स तक कई सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा तकमील की तरफ गामजन। 3 अरब 42 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अब तक 2.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। नए माली साल में इस मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 35 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर। शहर में नवाबपुर रोड से चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल तक 11 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन की अपग्रेडेशन का मंसूबा तकमील की तरफ गामजन। MD वासा खालिद रजा खान के मुताबिक 3 अरब 42 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर अब तक 2.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। नए माली साल में मंसूबे की तकमील के लिए 35 करोड़ के मजीद फंड जारी किए जा चुके हैं। ये प्रोजेक्ट ओवरऑल जो था 3.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 2.6 बिलियन जो है हमने यूटिलाइज कर लिए हैं टिल जून 2025, वेयर एज इस साल की जो 350 मिलियन इसकी एलोकेशन है जी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इस साल भी चलेगा और इसका जो लेफ्ट ओवर या बैलेंस काम है वो इस साल कंप्लीट होगा जी इंशाल्लाह। MD वासा का कहना है कि चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल की अपग्रेडेशन मुल्तान में सीवरेज का सबसे बड़ा मंसूबा है। नवाबपुर तक चुंगी नंबर 9 तक बड़ी सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है, जिसके बाद अब MDA सड़कों की तामीरों मुरम्मत करेगी। चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल पर नए बड़े जनरेटर्स, वाटर ट्रीटमेंट मशीनें और डीसिल्टिंग पंप लगाए जाएंगे। चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन जो है एक सेंट्रल डिस्पोजल स्टेशन है जो बहुत सारे एरियाज हैं, लाइक समनाबाद, राइटर्स कॉलोनी, LMQ रोड है, आपका जो है बोस्टन रोड है और इनका रशीदाबाद, खानेवाल रोड, इन तमाम एरियाज का जो अल्टीमेटली जो वेस्ट वाटर है वो इसी डिस्पोजल स्टेशन पे आता है जी। तो हमने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है इसमें हमने फोर्स मेन जो है तकरीबन वो 11,000 मीटर है, 11 किलोमीटर बनती है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। मुल्तान में सीवरेज के सबसे बड़े मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। मंसूबे की तकमील के लिए आइंदा साल भी करोड़ों रुपए के फंड्स दरकार होंगे। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान।
और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए रोही।